Hello guys, in this chapter of AFM, we have been covering risk management. In this risk management, we'll be bifurcating this topic into two elements. One is theory and number two will be practical problems. So the first part will be pure theory applicable for examinations. We'll be covering at a possibly maximum 15 minutes and you will be able to get it through. I will request you all to keep a small piece of page, a notebook, etc. so that you can at least recap the same and it will help you up to revise it in the next 5 minutes or so whenever you do it again. Let's start. The topic starts with identifying risk and ends with managing the risk. So let's start with the different types of risk associated with respect to any company or organization, and it starts with strategic risk. The word strategic risk refers to what? So the risk regarding failure of our strategy what we have implemented. That is the risk associated कि अगर हमारा strategy जो हमने use करा है for our business, if that fails, if that becomes outdated, then what shall be the consequences for the same? Definitely the consequences will be financial one. However, यहाँ पे first phase में हम risk को identify कर रहे हैं, तो ये जो रिस्क है कि मेरा प्लान मेरा स्ट्रैटेजी फेल हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. तो दे हैव टोल्ड अस द रीजंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर थियरी. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पॉसिबली लाइक एग्जांपल ऑफ नोकिया व्हाट दे हैव गिवन, कोडैक दे हैव गिवन कि डिजिटल कैमरा का लॉन्चिंग के वक्त जो ओल्ड बेसिस कैमरास टेक्नोलॉजिकल चेंज और अ टच स्क्रीन फोन एज कंपेयर टू कीपैड बेस्ड फोन, अ टेक्नोलॉजिकल चेंज. न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट and you are basically not being able to satisfy your strategy because of more competition like Asian Paints facing it of now. Shift in customer demand, possibly delivery is something what I have kept for your reference because nowadays people are more reluctant to go outside and take the food or order that way. Other than that, ordering through Swiggy or any other online platform is basically the trend. तो बहुत ऐसे businesses होंगे जहाँ पे they are good enough but possibly not been ready to get tied up with Zomato or Swiggy and possibly not getting the best out of the business what they end up with. This is all about strategic. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है कि द रीजन नंबर वन क्यों होता है, दैट इज व्हेन योर स्ट्रैटेजी बिकम्स आउटडेटेड क्यों होता है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू कंपटीशन, शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड, यू कैन रेफर टू दैट. एंड एग्जाम्पल्स में दे हैव केप्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडैक एंड Nokia. We can keep it of Asian Paints, Swiggy, Zomato, etc. to get it done better. I hope it is more evident. The next part comes up is compliance risk. When you talk about the word compliance risk, you generally feel non-compliance with respect to a CA, that is कि ऑडिट नहीं किया, टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, सेबी कंप्लायंसेस नहीं हो पाए, चलो पॉसिबल. बट इफ यू गो मोर अबाउट द कंप्लायंसेस अपार्ट फ्रॉम द लीगल कंप्लायंसेस व्हाट यू हैव एज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लाइक अ टैक्सेशन और इनकॉर्पोरेशन के बाद कंप्लायंसेस एंड ऑल, आई विल गो विद कंप्लायंस लाइक फूड अप्रूवल्स, IPO अप्रूवल्स, लाइक पतंजलि गेटिंग सम रिमार्क्स और बैंड हनी कॉन्टेंट हनी के लिए, या फिर कोई मेडिसिन जिसका बैन हुआ because of no approvals taken for the same. Lead content in Maggi and Nestle had some issues regarding its product. So compliance issues is more possibly not only about the legal aspects of it in terms of taxation or accountability, but also regarding approvals approvals for the food sector, the pharma sector, and any kind of compliances जहाँ पे कंपनी नई वेंचर में ऐड हो रही है. मतलब जब आप न्यू बिजनेस एंटर कर रहे हो तो यू आर नॉट बीन यूज्ड टू दैट बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस, एंड दैट इज अ टाइम वेयर बाय द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस इज मोर एविडेंट बिकॉज यू आर इन टू दैट सेक्टर एज अ न्यू प्लेयर एंड देर इज मोर स्कोप कि देर माइट बी सम एरर ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. उससे जो इशू आ सकता है, कभी कभी सर्वाइवल का इशू भी आ सकता है. अगर कोई बड़ा लाइसेंस बैन हो जाए, कोई बड़ा प्रोडक्ट हमारा बैन हो जाए, इट मे लीड टू अ सर्वाइवल इशू. The third part what they are targeting is operational risk. Now this is basically which comes up due to operational problems. Operational problems is something what you can control. We can talk it as unsystematic risk in financial language.
and that is basically called as internal risk which can be controlled, possibly yes, controlled definitely. और ये पार्ट जो है इट इज़ मोर अबाउट कंट्रोल्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जो आप ऑप्टिमाइज करके इसको रिड्यूस कर सकते हो. बट ये क्यों होता है? मैन पावर ठीक से अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑपरेशनल लेवल पे हमारे पास कोई रॉ मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ जो अवेलेबल नहीं है जो हमारे ऑपरेशंस को हैम्पर कर रहा है. द वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, द साइकिल, द बिजनेस साइकिल के अंदर कुछ इश्यूज आना, या फिर मैन पावर या लीड मैनेजर्स के ना होना, दिस कैन हैपन टुवर्ड्स इट. The fourth part is financial risk, and when we talk about financial risk, they have bifurcated the financial risk into 1, 2, 3 and 4. That is counterparty risk, number 2 political risk, number 3 interest rate risk, and number 4 currency risk. ठीक है. Now this is the last one is again linked with your working capital management, that is your operational risk. ठीक है. तो मोटा मोटी 4 ऑन बुक 5. नाउ काउंटर पार्टी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का फर्स्ट पार्ट काउंटर पार्टी रिस्क. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म? अरे यार, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द टर्म काउंटर पार्टी रिस्क. सी दिस इज in India, if I talk about a businessman, the counterparty risk will be a default made by our debtor, the default made by a party which is not in your control. That will be termed as a counterparty risk. कि मैंने सब कुछ ठीक किया बट डेटर ने पैसा ही नहीं दिया. It means I am booking a bad debt, and because of which even I'll be also involved in my liquidation, possibly when my debtor fails to pay me the money. Second is political risk. Now we talk about political risk, यानी क्या कि सर there are chances कि गवर्नमेंट्स का चेंज हो जाना, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस चेंज होना, टॉकिंग अबाउट द बजट्स कमिंग अप एंड हैविंग इम्पैक्ट ऑफ दैट बजट रूल और न्यूज़, इन कस्टम ड्यूटी ऐड होना या लेस होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दैट काइंड ऑफ अ रिस्क कमिंग इन टू योर बिजनेस कैन कवर अप पॉलिटिकल रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क. When you talk about interest rate risk, ये रिस्क तब आएगा जब आपकी इंटरेस्ट फ्लोटिंग हो, बिकॉज फिक्स्ड, अगर ये फिक्स्ड है देन यू आर ऑलरेडी कवर्ड अप योर रिस्क बाय हेजिंग. बट अगर वो फ्लोटिंग है तो हम फाइनेंस में चैप्टर्स यूज कर रहे हैं इन योर इंटरेस्ट स्वैप्स, कैप कॉलर्स एंड ऑल दैट, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में, जहाँ पे अगर आप फ्लोटिंग पे हो, रिस्क है तो आप उसको स्वैप ऑफ करके कम कर सकते हो. बट अभी तक मैं रिस्क अवॉइड करना नहीं सिखा रहा हूँ, रिस्क क्या है वो दिखा रहा हूँ. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क विल बी प्योरली रिगार्डिंग व्हाट द एक्सपोजर ड्यू टू फ्लोटिंग रेट. सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक अप the important element what you need to remember to finish it in 10 minutes, right? Because this will be covering approximately 4 to 6 marks for your paper. उसमें भी 6 में से शायद वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछ ले, तो इसमें से कुछ आएगा ही नहीं. चौथा आता है करेंसी रिस्क. now जब हम करेंसी रिस्क की बात करते हैं तो ये भी कब आएगा? जब हमारे बुक्स के अंदर फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो. वो भी कब आएंगे? जब हमारा ट्रांजेक्शन कोई भी लेवल पे, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, किसे कनेक्टेड है? फॉरेन करेंसी से कनेक्टेड होगा. हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड इवन दे हैव एक्सप्लेन्ड अस मोर डिटेल इन फॉरेक्स. तो ये आपका चौथा रिस्क हो गया, करेंसी रिस्क. तो इफ दे आस्क यू अबाउट फाइनेंशियल रिस्क, काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट एंड फॉरेक्स, दैट इज योर 4 पीसेस. एंड फाइनली सिंस आई सेड यू कि अगर वर्किंग कैपिटल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको हम कौन सा रिस्क बोलेंगे? लिक्विडिटी रिस्क. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो. अब ये जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई करे, पहले उसको फिनिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इट, कंट्रोलिंग इट और रिड्यूसिंग इट. तो ये कहता है काउंटर पार्टी रिस्क की जो हमने बात की उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो. तो बोला वी शुड गो फॉर ड्यू डिलिजेंस टू नो आवर डेटर बेटर. वी शुड नॉट कमिट टू अ सिंगल एंटिटी. वी शुड नो आवर लिमिट्स एंड एक्सपोजर्स. ठीक है. वी कैन ऑलवेज ट्राई टू हैव रैपिड एक्शन व्हेन वी फाइंड सम न्यूज ऑफ डिफॉल्ट्स, and we can use some guarantors or insurance for the same. So these are the tools what you can use to overcome the counterparty risk. तो ये आपको काम में आएगा as a theory for the paper, and I have simplified as much as I can. Political risk की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट को समझने के लिए, जानने के लिए पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश्ड बाय बिजनेस मैगजीन्स, उस पर फोकस करो. कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, जिस कंट्री से आप ट्रेड करना चाहते हो उसको कवर करो.
करंट गवर्नमेंट की ऑबिलिटी क्या है, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसको असेस करो. बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट वेदर इट्स गुड और नॉट. स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया उन्होंने एज इफ वी आर आउटसाइड इंडिया, बिकॉज ये कॉपी पेस्टेड है फ्रॉम सम अदर बुक. देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 3 पॉइंट्स कवर होंगे, चौथा पॉइंट इंडिया के लिए कवर नहीं. अगर इंडियन नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर है, तो वो 4th पॉइंट कवर होता है. एंड इंटरेस्ट रिस्क को कवर करने के पार्ट जो है कैप कॉलर, ये ऑलरेडी कवर्ड अप इन अदर चैप्टर्स, वी नो दैट. तो इन्होंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, डिस्कस इन डिटेल इन सेपरेट चैप्टर. दैट इज व्हाट वी हैव डन इन AFM प्रैक्टिकल पार्ट. करेंसी रिस्क के लिए भी वी नो टू ओवरकम दिस रिस्क इट इज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन अनदर मैनर. तो देखा जाए तो रिस्क को कवर कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा गया था. नाउ कमिंग टू द लास्ट थियोरी पार्ट, कि फाइनेंशियल रिस्क को अगर मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. शेयर होल्डर को कब डर लगता है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी हाई कैपिटल गेयरिंग एंड दे आर मोर वरीड. कंपनी को डर कब लगता है, जब कंपनी कहाँ जाती है, इनटू लिक्विडेशन. एंड गवर्नमेंट को कब डर लगता है, जब कोई बैंक लाइक लीमन ब्रदर्स क्या हो जाए, क्राइसिस में आ जाए. तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यूज के 3 रेफरेंसेस मैंने आपको दिए. कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडेशन, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्राइसिस, डेट क्राइसिस ऑफ बैंकिंग, ह्यूज बैंकर्स. एंड शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू में हमने देखा ओनली वन एलिमेंट, दैट इज व्हेन देयर इज अ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो एंड यू आर मोर वरीड अबाउट द रिस्क, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज कवर्ड अप टुवर्ड्स द सेम. इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है. आप ध्यान से रिव्यू करो इस पूरे स्टफ को. तो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करा एज स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क को हमने सब बाइफिकेट किया एज काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, करेंसी एंड लिक्विडिटी रिस्क. इसी को हमने आइडेंटिफाई करा कि इसका सोल्यूशन कैसा है टू कवर अप दिस. तो काउंटर पार्टी का सोल्यूशन क्या होगा, ये रहा. पॉलिटिकल पार्टीज पे सोल्यूशन ये रहा. उसके बाद के जो सोल्यूशंस थे, इंटरेस्ट रेट के कैप कॉलम सब उन्होंने रेफरेंस के लिए दिया. सेम विथ करेंसी एंड चैप्टर गॉट ओवर. अब इस टॉपिक में एक और छोटा सा वीडियो आएगा, दैट विल बी वैल्यू एट रिस्क. दैट इज व्हाट यू हैव टू कवर. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टडी. थैंक यू सो मच.